begin with the lesson number 9 of your class 7 English, that is the story of the fire. So let's recognize the fire. कहाँ से start हुई थी? Early man how invented the fire? So let's begin with this. Early man did not know what fire was. Early man को नहीं पता होता था कि fire क्या है. But he must have seen the damage. But उन्होंने damage देखा था जो it could cause, जो cause कर सकती थी. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. उन्होंने पहले lightning देखी थी, volcanoes की, या वो fire start हुई थी, मतलब अपने आप start करने से पहले fire को. Fire was powerful and dangerous as he was frightened. Fire बहुत ज़्यादा dangerous थी, बहुत ज़्यादा powerful थी और वो frightened, मतलब डर गए थे. Fire was have puzzled informed early man, but we now know that fire is the result of chemical reaction when oxygen is in the air combines with carbon dioxide and hydrogen in a fuel. A chemical reaction takes place. आपको फिर पता है फायर में भी have puzzled early man. फायर ने पहले कंफ्यूज कर दिया था early man को. अब हमें पता है फायर कैसे बनती है, वो किसका रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होता है जो ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हो जाती है, कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ फ्यूल में केमिकल रिएक्शन होता है. उस टाइम पे energy in the form of heat and light is released in the process. This is why when you blow on smoldering paper it often bursts into flame. आपने देखा होगा जब एक एनर्जी रिलीज होती है हीट और लाइट की किस पे, इस प्रोसेस में, फायर के प्रोसेस में. आपने देखा होगा जब आप एक स्मोल्डरिंग पेपर पे ब्लो करते हो तो किसमें चेंज हो जाता है, बर्स्ट, वो किसमें चेंज हो जाता है, फ्लेम में बर्स्ट हो जाता है. The third thing needed to make fire is heat. जो तीसरी चीज चाहिए होती है फायर को बनाने के लिए क्या है, वो हीट है. Fuel and oxygen do not make fire by themselves. जो फ्यूल और ऑक्सीजन होती है वो फायर अपने आप से नहीं बनाती. Else a newspaper on a stick lying in the open could catch fire on its own. But जो एक न्यूज़पेपर होती है और स्टिक जो खाली खुले में पड़ी होती है वो फायर कैच कर सकती है. To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire. कुछ भी हमें burn out करना होता है piece of paper को या piece of wood को, वो पहले क्या कैच करती है, वो heat कैच करती है, मतलब फायर कैच करने से पहले उसे हमें heat करना पड़ता है. We generally do it with a lighted match. फिर हम किससे करते हैं, lighted match stick से करते हैं. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature it is called flash point. हर फ्यूल का एक क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे वो स्टार्ट करता है बर्निंग टेम्परेचर, और व्हेन इट बिगिंस टू बर्न, जब वो स्टार्ट करता है बर्निंग, और दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट. और इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं. और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. It is sometimes said that fire is good servant but has mad masters. So fire क्या है, good servant है but उसके mad masters है. It only means that fire is very useful as long as kept under control. आपको पता है फायर सिर्फ जब तक यूजफुल है जब तक वो कंट्रोल में रखी जाए. For instance, we use it to cook our food. हम फूड कुक करने के लिए भी उसको यूज करते हैं. Warm a house in winters and to generate, अपने हाउसेस को वार्म करने के लिए यूज करते हैं. और क्या जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हम फायर को यूज करते हैं. But on the other hand, if fire gets out of control, it can be very dangerous. अगर फायर हमारी out of control हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए dangerous हो जाती है. Each year thousands of homes and shops are damaged by fire. हर साल बहुत सारी shops और houses damage हो जाते हैं किससे, फायर से. Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. बहुत सारे फॉरेस्ट में भी आग लग जाती है, vast area फॉरेस्ट कवर्ड जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं फायर से, और बहुत सारे hundreds of people और animals किल हो जाते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं. Just as 3 things are needed to start a fire. क्या 3 things चाहिए फायर स्टार्ट करने के लिए? 3 main ways in which a fire can put out. In each one of the 3 things needed for burning is taken away. For example, we can take away the fuel. अगर हम fuel ले ले, if the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. अगर fuel ही नहीं होगा तो burning भी नहीं होगी. We often let a fire die out simply, but not adding more fuel to it. अगर हम fuel add नहीं करेंगे तो fire अपने आप खत्म हो जाएगी, but हमें fuel add नहीं करना है. The second way of putting out a fire is to prevent oxygen. Second way क्या है फायर को रोकने का?
कि हम ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दें फ्रॉम रीचिंग इट, मतलब उससे पहुंचने तक ऑक्सीजन को बंद कर दें। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मींस नो फायर। अगर नो कोई भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो उसका मतलब ये होता है कि कोई फायर नहीं होगी। The small fires can put out or smothered with a damp blanket or a sack. स्मॉल जो छोटी फायर होती है उसको हम किससे बुझा सकते हैं? डैम्प ब्लैंकेट से या फिर सेक से। सो सेक मीन्स बोरिंग। दिस stops oxygen searching the burning material. ये इससे क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है। Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. कभी-कभी फायर बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी नीड होती है। It does not allow oxygen to reach burning material. ऑक्सीजन अलाउ ही नहीं करती बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने से। कार्बन फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है सबसे ज्यादा? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। The third way of putting out fire is to remove the heat. जो थर्ड वे है कि वहां से हीट ही हटा दो। If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. जब फ्लैश पॉइंट से नीचे टेम्परेचर आ जाएगा तो फ्यूल भी स्टॉप हो जाएगा बर्निंग से। You blow on a burning matchsticks or a candle to put it out. अब blow कर दो matchsticks पे या फिर candles पे तो क्या हो जाती है? बुझ जाती है ना। In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point. इससे क्या होता है? आप blow करते हो तो उससे होता है वो flash point से नीचे आ जाता है उसका flame. So flame bringing down its temperature and candle goes out. So sometimes water is sprayed on fire. कभी-कभी water भी spray कर देते हैं हम fire पे. It absorbs heat. वो heat absorb कर लेता है burning fuels की and lower the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. जो blanket होता है water का, मतलब कि हम water कर देते हैं सारे में, इससे भी cut off हो सकता है ऑक्सीजन का सप्लाई और फायर रुक सकती है। Some fires cannot be put out with water. कुछ फायर वाटर से नहीं बुझती। If water is sprayed onto an oil-free all fire, the oil will float to the top of water and continue to burning. अगर हम ऑयल फायर पे वाटर स्प्रे करेंगे तो ऑयल कहाँ पे आ जाएगा? टॉप ऑफ द वाटर पे आ जाएगा और कंटिन्यू रखेगा बर्निंग। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज ये डेंजरस हो सकता है क्योंकि वाटर फ्लोट करता है। वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। इससे आपकी फायर भी स्प्रेड हो सकती है, जैसे वाटर स्प्रेड होगा आपकी फायर भी स्प्रेड हो जाएगी। Water should also not be used on fire caused by electrical appliances. Water आपको वहाँ भी यूज नहीं करना चाहिए जहाँ फायर कॉज होती है किससे? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से। वहाँ भी आपको वाटर यूज नहीं करना चाहिए। The person spraying water might receive an electric shock and be killed. अगर जो पर्सन स्प्रे कर रहा है जो इलेक्ट्रिकल फायर लगी है उस पर वाटर स्प्रे कर रहा है उससे क्या हो सकता है? उससे इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है और उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। Carbon dioxide is the best extinguisher. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी क्या है? बेस्ट एक्सटिंग्विशर है। It is the best thing to fight an electrical fire. क्या बेस्ट थिंग है जो फाइट करती है किससे? आपकी इलेक्ट्रिकल फायर से। We spend millions of rupees each year in fighting fires. हम बहुत सारे millions of rupees यूज कर देते हैं किससे? फाइटिंग फायर्स पे। And we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out control. और बहुत सारे हम किस पे स्पेंड कर देते हैं कि न्यू वेज फाउंड करने में कि हम कैसे फायर से बचा सकते हैं जब फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use everyday life. हमें फायर को कैसे बुझाना हम जान चुके हैं और हमें उसे फायर को गुड यूज में कैसे लाना है वो पढ़ते हैं। Long ago there were no firemen. बहुत साल पहले कोई फायरमैन नहीं होता था। When fire broke out, everybody became a firefighter. जब फायर आग लग जाती तो हर कोई फायर फाइटर बन जाता था। People formed human chains. People क्या बनाते थे? Human chains बनाते थे। वो भी बना लेते अगर रिक्वायर्ड होती है। And pass bucket of water from a well and or a pond to the place. और bucket of water एक चेन बना के bucket of water पास करते थे कहाँ तक? जहाँ पे पॉन्ड से और वेल से कहाँ तक? जहाँ पे लगी हुई है आग ब्लेज तक। Now there were laws about building constructions which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. अब एक बिल्डिंग लॉज बने हुए हैं जिसमें कि आपको बिल्डिंग्स बनानी है तो उसके बीच में स्पेस कंस्ट्रक्ट करे गए हैं फायर रोकने के लिए। Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms.
और जो भी नई बिल्डिंग बनती है उसको पहले फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस bands of firefighter works with special equipment। जो bands होते हैं फायर फाइटर के, वो किससे स्पेशल इक्विपमेंट्स के वर्क करते हैं, नोन एज फायर ब्रिगेड्स। उनको हम क्या कहते हैं, फायर ब्रिगेड्स कहते हैं। एंड देयर टू पुट आउट फायर्स। Firefighters are highly trained people। जो फायर फाइटर्स होते हैं वो आपके बहुत ज्यादा हाईली ट्रेन्ड पीपल होते हैं। They possess many skills। उन पे बहुत सारी स्किल्स आती हैं। They cut off electricity supply। वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रोक देते हैं। Knock down dangerous wall। वो कूद जाते हैं dangerous wall से। Spray water and other material to bring fire under control। वाटर स्प्रे करते हैं, कुछ अदर मटेरियल्स स्प्रे करते हैं फायर को कंट्रोल में लाने के लिए। They are also trained in first and so they can help people suffering from burns and from the effects of smoke। वो पहले ट्रेन होते हैं, फिर क्या होता है, वो पीपल जो सफर कर रहे होते हैं बर्न से, फिर उनको ट्रीट करते हैं। The discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of fire। तो इससे क्या होगा, जो एक डिस्कवरी हुई थी फायर की और जो उसकी यूजेस थे, उन्होंने अर्ली मैन को हेल्प करा था किसमें, कोप करने में। मतलब कोप मीन्स टू मैनेज विद नेचर बेटर देन ग्रेजुअली अडॉप्ट, या फिर अडॉप्ट कर ले सेटल्ड मोड ऑफ फायर को। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। फायर को वर्शिप करते हैं बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में एज अग्नि देवता। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट एज नोन इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट आउट। फायर हमारी फ्रेंड भी हो सकती है, बट अगर हम उसे जाने तो वो एक डेंजरस एनिमी भी हो सकती है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.